Welcome to the world of chemistry. Myself, Professor Sanket Jhate. Today, we are going to discuss about the crystal field theory. Crystal field theory. The crystal field theory describes the bonding in transition metal complexes. मतलब मेटल और लिगैंड के बीच में जो बॉन्ड तैयार होगा और उसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्सेस तैयार होंगे, तो वो बॉन्ड कैसे तैयार हुआ, इंटरेक्शंस क्या है, आयोनिक है, कोवलेंट है, ये सभी आंसर्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देगी। जैसे वीबीटी ने हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने भी आंसर दिए थे कि मेटल और लिगैंड के बीच में कैसे बॉन्ड्स तैयार होते हैं और कॉम्प्लेक्सेस कैसे तैयार होते हैं। जैसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी अलग कंसेप्ट है। तो इट एक्सप्लेन्स द बॉन्डिंग बिटवीन metal and ligand, the metal ligand complexes. The formation of complex is a Lewis acid base reaction. Second point is the formation of complex is like a Lewis acid base. The bond formed between metal and ligand, the ligand's going to donate 2 electron to the metal. So ligand donates 2 electron to the empty orbital of metal. So electron donors are nothing but the Lewis base. Lewis base. And electron acceptors are nothing but the Lewis acids. So Lewis acids are electron acceptors or lone pair acceptors, and Lewis base are nothing but the electron donors. So in this case, ligands are going to donate the electrons, so ligands will act as a Lewis base, and metal are going to accept the electron into its empty orbital. So they are called as the Lewis acids. So in this case, the metals are Lewis acids and ligands are Lewis base. The second point, the third point. Third point. Both electrons in the metal come from the ligand and are donated into the empty hybridized orbital on the metal. जो अभी हमने एक्सप्लेन किया, चार्ज इज डोनेटेड फ्रॉम द लिगैंड टू द मेटल। सही बात है, क्योंकि लिगैंड क्या करेगा, निगेटिव चार्ज डोनेट करेगा, निगेटिव चार्ज डोनेट करेगा मेटल को। So in this case, the charge is transferred from or donated from ligand to metal. Assumptions. The interaction between ligand and the metal is electrostatic. This is the assumption of CFT. Okay, the main point. The bond between metal and ligand. The interaction between metal and ligand is electrostatic. Why the interaction is electrostatic? Because ligands are having negative charge and metals are having positive charge. There is an interaction between the positive charge metals and the negative charge electrons. So the electrostatic interaction between metal and ligand. The charges, the opposite charges interaction is called as the electrostatic interaction between metal and ligand. मतलब मेटल और लिगैंड के बीच में क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। The more directly the ligand attacks the metal orbital, the higher the energy of the d orbital. देखिए what happens here. मेटल के पास क्या है, d ऑर्बिटल्स है, तो ये हो गए मेटल के d ऑर्बिटल्स। अब ये मेटल के d ऑर्बिटल में लिगैंड क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ओके, तो लिगैंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। ये हो गया मेटल हमारा और ये हो गया लिगैंड। तो लिगैंड जैसे ही उसके इलेक्ट्रॉन मेटल के पास आएंगे, तो मेटल के पास भी खुद के इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ रहेंगे। हर मेटल के पास अलग अलग इलेक्ट्रॉन रहेंगे, डिपेंड्स ऑन इस एटॉमिक नंबर। तो ये मेटल के इलेक्ट्रॉन
कि मेटल के इलेक्ट्रॉन एंड लिगैंड के इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, दोनों के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है. सो द रिपल्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, द मेटल इलेक्ट्रॉन्स एंड द लिगैंड इलेक्ट्रॉन्स, अब इन दोनों के बीच में अगर रिपल्शन होगा तो उसके वजह से क्या होगा, एनर्जी बढ़ जाएंगी. तो ये डी ऑर्बिटल की जो एनर्जी है, डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, हायर एनर्जी को जाएगा. ये डी ऑर्बिटल क्या गया, अब हायर एनर्जी पे गया. तो अगर ऐसे एनर्जी ली तो डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई. इसीलिए डी ऑर्बिटल की एनर्जी कब बढ़ेगी, जब द इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगैंड इज मोर. सो मोर इज द इंटरेक्शन, ग्रेटर इज द एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल. तो ये बेसिक कंसेप्ट है बिहाइंड द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या होता है, मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है, उसके वजह से डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ती है. दिस इज द बेसिक कंसेप्ट behind crystal field theory. Crystal field theory, electrostatic approach to the bonding, first applied to the ionic crystalline substances. Assumptions, metal ion at a center. मतलब इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि सेंटर में क्या रहेगा, मेटल रहेगा. ये देखिए, ये होगा सेंटर में मेटल, और आजू बाजू से क्या आएंगे, लिगैंड्स आएंगे. The ligands are treated as a point charges. जो लिगैंड्स आएंगे आजू बाजू से वो रहेंगे नेगेटिव चार्जेस, और सेंटर में जो मेटल है वो रहेगा पॉजिटिव चार्ज. मतलब द बॉन्डिंग ऑकर्स थ्रू M प्लस एंड L माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. मतलब मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और लिगैंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज. तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा यहाँ पे. द बॉन्डिंग इज प्योरली आयोनिक बॉन्डिंग बिकॉज there is a positive charge and negative charge, the attraction between positive charge and negative charge, the bond formed between the positive and negative charge is electrostatic attraction, so it is called the ionic bonding. So ये ionic bonding कहलाता है, this is called the ionic bonding. मतलब CFT का मेन assumptions ये है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड तैयार होगा. तो ये बॉन्ड जो है वो प्योरली आयोनिक बॉन्ड है, द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगैंड. द M and L electrons repel each other. अब ये जैसे ही लिगैंड के इलेक्ट्रॉन पास पास आएंगे तो लिगैंड के इलेक्ट्रॉन, मेटल के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. और जैसे ही रिपेल करेंगे तो मेटल के डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. और बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ेंगी कि एक स्टेज पे वो जो डी ऑर्बिटल के 5 सब ऑर्बिटल्स है वो क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे. तो डी ऑर्बिटल डीजनरेसी इज ब्रोकन एज लिगैंड्स अप्रोच. मतलब एनर्जी इतनी बढ़ेगी कि एक स्टेज ऐसी आएंगी, एक स्टेज ऐसी आएंगे कि वहां पे क्या होगा, डी ऑर्बिटल की क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी. मतलब सपोज हमारे पास ये डी ऑर्बिटल है और ये इधर से सपोज लिगैंड के इलेक्ट्रॉन्स आ गए. अब ये लिगैंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन इतना बढ़ेगा कि डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी. ये देखिए मैंने हायर एनर्जी पे डी ऑर्बिटल लिखा, और उससे भी अगर वो और पास आ गए तो ये डी ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा. 3 ऑर्बिटल सपोज ऊपर, 2 ऑर्बिटल नीचे, ये डिपेंड है. लेकिन ये क्या किया, जो 5 सब ऑर्बिटल्स थे, 5 सब ऑर्बिटल अब क्या हो गए, स्प्लिट हो गए. 3 ऊपर गए और 2 नीचे आ गए. तो दिस कॉल्ड द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स. तो ये डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग क्यों होती है, क्योंकि लिगैंड्स के इलेक्ट्रॉन उसके पास आते हैं. तो जब भी लिगैंड्स के इलेक्ट्रॉन उसके पास आएंगे तो डी ऑर्बिटल की क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी. मतलब जब एक सिंगल मेटल, मतलब जब सिंगल मेटल हमारे पास है तो उसमें स्प्लिटिंग नहीं होगी. क्यों नहीं होगी स्प्लिटिंग, क्योंकि मेटल के आजू बाजू में कोई भी लिगैंड्स नहीं है, स्प्लिटिंग नहीं होगी. लेकिन जब ये मेटल लिगैंड के साथ बॉन्ड तैयार करेगा, और जैसे ही बॉन्ड तैयार करेगा एम एल,
तो ये लिगैंड के इलेक्ट्रॉन मेटल के पास आएंगे, अगर पास आए तो उसके डी ऑर्बिटल की क्या होगी, फिर स्प्लिटिंग हो जाएगी। मतलब जब भी मेटल और लिगैंड का कॉम्प्लेक्स तैयार होगा, कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग तैयार होगी, स्प्लिटिंग मिलेगी। लेकिन जब मेटल हमें सिंगल स्टेज में रहेगा तब ओ डी की स्प्लिटिंग नहीं होगी। तो दिस इज कॉल्ड द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, मतलब डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग। दिस इज द मेन एम ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब देखते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, कॉम्प्लेक्सेस डिफरेंट टाइप के, ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लानर है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। तो हर एक केस में स्प्लिटिंग अलग अलग होगी। तो सबसे पहले देखते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मतलब क्या होगा, कि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर मतलब सेंटर में एम, इसके आजू बाजू में स्क्वायर प्लानर करके 4 लिगेंड्स और 2 है यहाँ पे, एक ऊपर और एक नीचे लिगेंड। सो दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये स्ट्रक्चर होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, स्क्वायर प्लानर। और तो इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कैसी होगी, मतलब इस मेटल के आजू बाजू में जब 6 लिगैंड आएंगे तो ये जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होगी, एक्सप्लेन हम करेंगे। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। डी ऑर्बिटल्स एंड लिगैंड इंटरेक्शन। अब देखिए लिगैंड अप्रोचिंग मेटल्स। अब स्टार्टिंग में क्या होगा, मेटल है, मेटल के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, लिगैंड उसके पास आएगा। जैसे ही लिगैंड उसके पास आएगा, मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, रिपल्शन होगा, और उस रिपल्शन की वजह से स्प्लिटिंग होगी। तो जितना ज्यादा रिपल्शन उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी बढ़ेगी। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रेटर इज द रिपल्शन ग्रेटर इज द एनर्जी। मतलब मेटल और लिगैंड के बीच में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा उतनी उसकी एनर्जी बढ़ेगी। अब डी ऑर्बिटल मतलब 5 सब ऑर्बिटल। अब ये 5 सब ऑर्बिटल्स में से क्या क्या हमारे पास रहते हैं, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लास्ट वाला रहता है डी जेड स्क्वायर। मतलब ये जो 5 सब ऑर्बिटल निकाले मैंने, 5 सब ऑर्बिटल के ये नेम रहते हैं। पहला है डी एक्स वाई, दूसरा डी एक्स जेड, तीसरा डी वाई जेड, तीसरा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और चौथा है डी जेड स्क्वायर। तो इनके नेम है। अब क्या होगा, जैसे ही लिगैंड्स के इलेक्ट्रॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन्स के पास आएंगे तो इन दोनों के बीच में होगा रिपल्शन। सो द रिपल्शन बिटवीन द मेटल इलेक्ट्रॉन्स एंड द लिगैंड इलेक्ट्रॉन्स। सो इस रिपल्शन की वजह से इस डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ेगी। तो डी ऑर्बिटल में तो 5 सब ऑर्बिटल्स है, तो इन 5 सब ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ेगी। तो जैसे ही एनर्जी बढ़ेंगी तो उनकी क्या हो जाएगी, बाद में जिनकी ज्यादा एनर्जी वो हायर एनर्जी पे जाएगा। मतलब जहां पे रिपल्शन ज्यादा वो हायर एनर्जी जाएगा, और जहां पे रिपल्शन कम वो लोअर एनर्जी पे रहेगा। मतलब ये जो 5 सब ऑर्बिटल्स है इनमें क्या होगी, स्प्लिटिंग होंगी। तो जिस ये इलेक्ट्रॉन जहां पे ज्यादा रिपेल करेंगे वो ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल कहां पे जाएंगे, हायर एनर्जी पे जाएंगे। तो जो 5 सब ऑर्बिटल के नाम मैंने लिखे इनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स रहते हैं, तो उनके हिसाब से यहाँ पे रिपल्शन होगा। अब देखते हैं। तो पहला है डी जेड स्क्वायर। तो ये जो डी जेड स्क्वायर है
उसकी डायग्राम देखिए कैसी है। ये जो है ये जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। और ये जो ऑर्बिटल निकाले मैंने, ये ऑर्बिटल कौन से एक्सिस में है? जेड एक्सिस में है। मतलब ये डी जेड स्क्वायर के इलेक्ट्रॉन्स इस जेड एक्सिस पे है, और लिगैंड जो है वो इस जेड एक्सिस से ही अप्रोच करेगा। लिगैंड कहाँ से अप्रोच करेगा? इस जेड एक्सिस से। अब ये लिगैंड जेड एक्सिस से अप्रोच किया, इस जेड एक्सिस के ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टली इंटरेक्शन होगा। तो ये और ये इंटरेक्शन क्या होगा? ज्यादा है। अगर ये जेड एक्सिस का और लिगैंड का इंटरेक्शन ज्यादा है, इसका मतलब इसकी एनर्जी बढ़ेगी। इसीलिए मैंने ये जो स्प्लिटिंग दिखाई, ये डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में से ये डी जेड स्क्वायर की एनर्जी ज्यादा, यहाँ पे एनर्जी हमने बढ़ाई, ये एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे बढ़ेगी। तो डी जेड स्क्वायर की एनर्जी इसी वजह से ज्यादा लिखी मैंने, क्योंकि ये लिगैंड जहां से अप्रोचिंग लिगैंड है, अप्रोचिंग लिगैंड के स्ट्रेट लाइन में ही इसके डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल आता है, इसीलिए यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा रहता है। अब दूसरा देखिए, दूसरा ऑर्बिटल है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे भी देखिए, एक जो ऑर्बिटल है ये y के बीच में है, देखिए y एक्सिस के बीच में है, और एक ऑर्बिटल कहाँ पे है? x एक्सिस पे है। मतलब फिर से x और y एक्सिस पे क्या है? ये ऑर्बिटल है। और इस x एक्सिस से भी क्या आएगा? लिगैंड आएगा। y एक्सिस से भी आएगा, z से भी आता है, इधर माइनस से भी आता है, क्योंकि 6 लिगैंड आएंगे। ओके, Ml6 ऑक्टाहेड्रल में क्या रहते हैं? 6 लिगैंड्स रहते हैं। तो 6 लिगैंड्स इसी अप्रोच से आएंगे। तो देखिए यहाँ पे y एक्सिस से भी लिगैंड आएगा, x से भी आएगा। अगर ये y एक्सिस से लिगैंड आया तो y एक्सिस पे ही क्या है? ऑर्बिटल है, इसीलिए यहाँ पे इंटरेक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। अगेन x एक्सिस पे भी क्या है? ऑर्बिटल है, यहाँ से भी क्या आएगा? लिगैंड आएगा। मतलब x और y एक्सिस दोनों इस पे ऑर्बिटल है और दोनों इस पे लिगैंड आएगा, मतलब यहाँ पे भी इंटरेक्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे रिपल्शन बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, इसीलिए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनकी भी क्या की मैंने? एनर्जी ज्यादा लिखी। तो यहाँ पे डी जेड स्क्वायर, जेड एक्सिस से भी इलेक्ट्रॉन आया इसीलिए रिपल्शन बढ़ गया, एक्स और वाई एक्सिस से भी आया इसीलिए रिपल्शन बढ़ गया। इसीलिए डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों की भी क्या एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि रिपल्शन यहाँ पे ज्यादा है। इसलिए इन दोनों को मैंने ऊपर लिखा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, देखिए उनके क्या लिया? हायर एनर्जी पे लिखा। अब लोअर एनर्जी पे कौन सा है? डी एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड। अब इनकी एनर्जी कम क्यों है? तो आप डायग्राम देख सकते हैं, डी एक्स वाई की ऐसी डायग्राम है, देखिए ये जेड है, जेड के ऊपर कोई ऑर्बिटल नहीं है। ये वाई देखिए, वाई के ऊपर भी कोई ऑर्बिटल नहीं है, और एक्स के ऊपर भी कोई नहीं है। ये जो ऑर्बिटल एक दिख रहा है, अब देखिए ये जो मैंने ड्रॉ किया रेड में, वो ऑर्बिटल एक्स और वाई के बीच में है। मतलब वो एक्स एक्सिस पे भी नहीं है और वाई एक्सिस पे भी नहीं है। तो रिपल्शन यहाँ पे कम होगा, क्योंकि लिगैंड कहाँ से आएगा? एक्स एक्सिस से आएगा, वाई एक्सिस से आएगा, जेड एक्सिस से आएगा। अब देखिए लिगैंड एक्स से आया, वाई से आया, लेकिन उसको डायरेक्टली रिपल्शन के लिए डायरेक्ट इंटरेक्शन है ही नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे भी ऑर्बिटल नहीं है और वाई पे भी ऑर्बिटल नहीं है। वो जो ऑर्बिटल है वो एक्स और बीच वाई के बीच में ऑर्बिटल है, मतलब इंटरेक्शन यहाँ पे कम होगा। वैसे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में देख सकते हैं, वाई पे ऊपर ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल एक्स पे है, इसलिए डायरेक्ट इंटरेक्शन था। यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में इंटरेक्शन है, वो ऑर्बिटल है, इसका मतलब यहाँ पे इंटरेक्शन कम होगा। इंटरेक्शन कम, रिपल्शन कम, मतलब एनर्जी कम, इसलिए डी एक्स वाई हमने नीचे लिखा। अब फिर से देखिए डी वाई जेड, वही केस। देखिए y के ऊपर भी कोई ऑर्बिटल नहीं, x के ऊपर भी कोई ऑर्बिटल नहीं, और z के ऊपर भी कोई ऑर्बिटल नहीं। अगर इस एक्सिस में ही ऑर्बिटल नहीं है, मतलब ये जो अप्रोचिंग लिगैंड है उनको डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है किसी से भी, तो रिपल्शन करने के लिए डायरेक्टली ऑर्बिटल उस एक्सिस पे नहीं है, जेड एक्सिस पे भी नहीं है, वाई पे भी नहीं है, एक्स पे भी नहीं है,
इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा, रिपल्शन कम होगा, मतलब एनर्जी कम, इसलिए यहाँ पे नीचे लिखा। सेम केस एक्स जेड, यहाँ पे भी देखिए जेड एक्सिस पे भी कोई ऑर्बिटल नहीं है, वाई पे भी नहीं है और एक्स पे भी नहीं है। मतलब ये जो अप्रोचिंग लिगेंड्स है उनको डायरेक्टली रिपेल करने के लिए कोई ऑर्बिटल है ही नहीं, ये सभी ऑर्बिटल्स जो जो बीच में है। There is a difference between these three. These three are nothing but the T2G orbitals and above two are EG orbitals. अब EG और T2G में फर्क क्या है देखिए, EG वाले जो ऑर्बिटल्स है वो एक्सिस पे है, जैसा ये DZ वाला Z एक्सिस पे है, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र वाला एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे है। मतलब ईजी ऑर्बिटल्स एक्सिस पे रहते हैं और एक्सिस पे है, और उसी एक्सिस से क्या होता है, लिगैंड आता है, मतलब लिगैंड के रास्ते में रहते हैं ये। सो देयर इज अ मोर इंटरेक्शन रिपल्शन बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल्स एंड लिगैंड्स, इसीलिए उनकी एनर्जी ज्यादा है। अब T2G वाले जो तीन ऑर्बिटल्स मैंने लिखे, ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स देखिए कहाँ पे है, एक भी एक्सिस पे नहीं है। सभी इलेक्ट्रॉन्स कैसे है, ये सभी ऑर्बिटल्स जो है वो कैसे है, इन बिटवीन द एक्सिस है, तभी एक्स और वाई के बीच में है ये वाई और जेड के बीच में है। और ये देखिए मतलब एक भी ऑर्बिटल किसी एक्सिस पे नहीं है, बिटवीन है। अगर एक्सिस पे नहीं है मतलब वो डायरेक्टली अप्रोचिंग लिगैंड के रास्ते में नहीं आएगा, वो साइड में पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे एनर्जी कम लगेगी क्योंकि रिपल्शन कम है। इसलिए T2G की एनर्जी कम है क्योंकि उसके सभी ऑर्बिटल्स इन बिटवीन द एक्सिस है, और EG के सभी ऑर्बिटल्स, दो ऑर्बिटल जो है वो कैसे ऑन द एक्सिस है, इसलिए वहां पर रिपल्शन ज्यादा है। सो इन दिस वे the EG orbitals are having higher energy and T2G orbitals are having lower energy. So D orbitals की स्प्लिटिंग ऐसी होगी, EG ऊपर जाएंगे और T2G नीचे आएंगे। ये डायग्राम देख सकते हैं, ये D ऑर्बिटल्स है हमारे, इसमें क्या हो गया, दो EG के ऑर्बिटल ऊपर लिखे हमने, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जेड स्क्र, इनकी एनर्जी ज्यादा है क्योंकि इनके ऑर्बिटल एक्सिस पे है। और T2G के ऑर्बिटल जो तीन है, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, ये तीनों क्या है, इसकी एनर्जी कम है क्योंकि इनकी ऑर्बिटल्स इन बिटवीन द एक्सिस है। तो ये गई सेंटर लाइन जहां पे डी ऑर्बिटल था, यहां से एनर्जी बढ़ गई EG की, और यहां से एनर्जी बढ़ गई, कम हो गई T2G की। एनर्जी बढ़ गई इसलिए हमने इसको प्लस में दिखाया, ये क्या है, प्लस 6 DQ, मतलब यहां से उसकी एनर्जी प्लस 6 DQ से बढ़ गई, और यहाँ पे माइनस हो गई क्योंकि यहाँ से एनर्जी कम हो गई, इसलिए -4 DQ से कम हो गई। मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 DQ का। द डिफरेंस बिटवीन EG एंड T2G इज 10 DQ। 10 DQ का डिफरेंस है, 10 में से 6 से एनर्जी बढ़ गई और 4 से एनर्जी कम हो गई। ऐसे ही डेल्टा O, दो यूनिट है, DQ लिया तो 6 और डेल्टा O लिया तो 0.6, प्लस 0.6 एंड माइनस 0.4 डेल्टा O। दिस इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन EG एंड T2G। तो EG की एनर्जी प्लस 6 DQ से बढ़ गई और T2G की -4 DQ से कम हो गई। और लिख सकते हैं 0.6 डेल्टा O से बढ़ गई और -0.4 डेल्टा O से कम हो गई। तो DQ लिया तो 6 4 लेना, और डेल्टा O लिया तो 0.4 एंड 0.6 लेना। So this is the splitting in octahedral complexes, मतलब octahedral complex में EG ऊपर जाएंगे और T2G नीचे आएंगे। So that's all for today. Thank you so much.